Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. This is for class third, subject reasoning, chapter number 16, Insects World. This is our lecture number 1. Name of insects. Our subtopic is name of insects. In these type of questions, we have given the names of insects in Phillips form and we will have to fill the blanks to complete the name of that insect by choosing correct option. Understood? बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें इंसेक्ट्स के नाम दिए हुए होंगे फिलिप्स फॉर्म में और हमने उन ब्लैंक को फिल करना होगा और हमें इंसेक्ट का नाम कंप्लीट करना होगा बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. जो ऑप्शन दिए हुए होंगे उनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करके. अंडरस्टूड? Now beta, I will teach you the given topic, name of insects with the help of example. Fill in the blanks. Following word is related to insect word. Example: dash dash a s s dash o p dash dash dash. Okay, so beta, here in this given example, the name of the insect is given in fill-up form. इंसेक्ट का नाम फिलअप फॉर्म में दिया हुआ है बेटा. ओके, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक. आपने इन ब्लैंक को फिल करना है. ये जो आपके ब्लैंक दिए हुए हैं इनको फिल करना है टू कंप्लीट द नेम ऑफ द इंसेक्ट, जिससे कि एक यहाँ पर इंसेक्ट का नाम बने. और वो कहां से कंप्लीट करना है? बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन. आपको मैं यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन लिख रही हूं. आपको उन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि उसमें से मैं कौन सा ऑप्शन इन फिलअप में फिल करूं कि मेरा यहाँ पर एक इंसेक्ट का नाम बन जाए. ओके, ऑप्शन A C D P E R. Here box is given. अगर ये आपका ऑप्शन करेक्ट है तो यू विल पुट टिक हियर इन दिस बॉक्स. ऑप्शन B G R P P E R. If option B is correct, then you have to put tick here in this box. Option C GRHPER. Here box is there. If option C is correct, then you have to put tick here. Okay. Option D GAPPER. Here box is given. If option D is correct, अगर हमारा option D correct है तो हम इस बॉक्स में टिक करेंगे. ओके बेटा. अब आप बेटा, अब आपको सोचना है कि हम कौन सा अल्फाबेट फिल करेंगे. ओके, इन 4 ऑप्शन में से
जिसको फिल करने पर यहाँ पर एक इंसेक्ट का नाम हो. Okay, or that will be related to insect word. Okay, see here, think, क्या आपका ऑप्शन ए होगा? ऑप्शन ए के अल्फाबेट आप यहाँ पर फिल करोगे, और ऑप्शन बी अल्फाबेट यू विल फिल here, और ऑप्शन सी अल्फाबेट यू विल फिल here. At last, ऑप्शन डी अल्फाबेट यू विल फिल here. Tell. आपको सोचना है और इसमें आपको फिल करना है. ओके बेटा. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. हाउ? कैसे बेटा? सी हियर, फर्स्ट अल्फाबेट इज जी, सो वी विल फिल जी हियर in the first blank. Second alphabet is R. We will fill here R. Okay. Then it will become grass. Okay. The next alphabet is H. We will fill here H. Okay. The next alphabet is P. We will fill here P. After P, then E is given. इस E अल्फाबेट को हम यहाँ पर फिल करेंगे. ओके. एट लास्ट विच अल्फाबेट इज लेफ्ट हेयर? दैट इज R. इस R को हम यहाँ पर फिल करेंगे. तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे जब आपने GR फिल किया तो ये क्या बन गया? ग्रास. यहाँ पर आप H फिल करोगे, ग्रास हो. फिर यहाँ पर आप PER फिल करोगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा? ग्रास ओपर. ओके. दैट इज इंसेक्ट नेम. सो आर ऑप्शन सी इज करेक्ट. वी विल पुट टिक हियर. ओके. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? आंसर इज GR H P E R. Clear? This is our answer. So which option is correct? Option C is correct. Answer is option C is correct. Understood? Now beta, I taught you the topic name of insects with the help of example. Okay, now I am going to assign you 5 questions in homework which you have to do yourself. Homework. Homework questions are: fill in the blanks. Each word is related to insect word. Question 1. C dash dash KR dash 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 H. आपको बेटा इन ब्लैंक्स को फिल करना है, और जो इसका ईच वर्ड होगा दैट विल बी रिलेटेड टू insect word. Out of these 4 given options, you have to choose the correct option. Option A, COOAO. You have to put a tick here in this box if option A is correct. Option B, OAACC. Here box is given. You have to put a tick if option B is correct. Option C, AAOCC. Here box is given. You have to put a tick if option C is correct. In option D, OCOAC. Here box is given. If option D is correct, then you have to put a tick here. Understood? Question number 2. W dash dash P. Okay, here beta, this fill in the blanks are given. These two fill in the blanks are given in question number 2. So beta,
आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस जो मैम अब नीचे लिखेंगी, आपको इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए, जिससे कि आपका ये किसका नेम बन जाए, इंसेक्ट का नेम बन जाए। ओके, सी ऑप्शन ए O S, here box is given. If option A is correct, then you have to put a tick here. Option B AS, here box is given. You have to put a tick here if option B is correct. Option C OR, here box is given. If option C is correct, then you have to put a tick here. Option D RA, here box is given. If option D is correct, तो आप इस बॉक्स में टिक लगा दोगे। Understood? You have to do homework questions carefully. Now in homework, fill in the blanks. Each word is related to insect word. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में जो भी आपका वर्ड बनेंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, इंसेक्ट वर्ड से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, CAT डैश 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 L-R. ओके, गिवन ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ENTELA, here box is given in which you have to put a tick if option A is correct. Option B ONPISA, here box is given. Here in this box you have to put a tick if option B is correct. अगर ऑप्शन बी करेक्ट है तो आप इस बॉक्स में टिक लगाओगे। इन ऑप्शन सी ODPRLA, यहाँ पर भी आपका बॉक्स बना हुआ है। इफ ऑप्शन सी करेक्ट है तो आप इस बॉक्स में टिक लगाओगे। ऑप्शन डी ERPILA, here box is given. If option D is correct तो आप इस बॉक्स में टिक लगाओगे। ओके बेटा, अंडरस्टूड? आपको समझ में आ गया ना कि आपको ये कैसे करना है? बेटा आपको क्या करना है, इस फिलअप में आपको इस फिलअप को आपने कंप्लीट करना है इन 4 ऑप्शंस में से। अल्फाबेट्स लेकर आपको इन फिलअप में फिल करनी है और वो अल्फाबेट इसमें फिल करनी है जिनसे एक इंसेक्ट का नाम बनेगा आपका। क्लियर बेटा? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, A dash dash, option A NT, here box is given if option A is correct. अगर ऑप्शन A करेक्ट है तो इस बॉक्स में टिक लगाओगे आप। ऑप्शन B YY, this box is given if option B is correct, then you have to put a tick here in this box. Option C O, if this option C is correct, then you have to put a tick here in this box. अगर आपका ऑप्शन C करेक्ट है तो इस बॉक्स में आप टिक लगाओगे। ऑप्शन D E, if option D is correct, then you have to put a tick here in this box. अंडरस्टूड? यहां पर भी क्वेश्चन 4 में भी आपको बेटा इन 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है उनके अल्फाबेट्स आपको इन फिलअप में फिल करनी है और वो अल्फाबेट आप फिल करोगे इन 4 ऑप्शन में से जो जिनसे कि यहाँ पर एक पूरा मिलाकर इस ए को मिलाकर एक इंसेक्ट का नाम बने। ओके, यू हैव टू चूज correct option out of these 4 given options. Clear? Now in homework, fill in the blanks. Each word is related to insect word. Okay, हर वर्ड किससे रिलेटेड होगा, इंसेक्ट वर्ड से।
आपको ब्लैंक को फिल करना है इन क्वेश्चन नंबर 5. सी ई डैश टी एच डैश आर डैश. Okay, here given four options are option A RAMOW. Here box is given. अगर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है तो इस बॉक्स में आप टिक लगाओगे. ऑप्शन बी ARWOM. Here box is given. If option B is correct, then you have to put a tick here in this box. Option C MOWAR. Here box is given. अगर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है तो आप इस बॉक्स में टिक करोगे. ऑप्शन डी RIIIL. If option D is correct, then you have to put a tick here in this box. Clear बेटा? ये आपके fill in the blanks हैं. Okay, आपको इन fill in the blanks में out of these 4 given options, इन 4 given options में से एक correct option को fill करना है. Okay, और आपको वो अल्फाबेट फिल करनी है इन ऑप्शंस में से जिससे कि ये पूरा कंप्लीट एक इंसेक्ट का नाम बने. क्लियर बेटा? यू हैव टू डू होमवर्क केयरफुली. क्लियर? नाउ बेटा we will discuss homework solutions which I had assigned in the previous lecture. Let's start. Homework solution of chapter number 15 water image. That was our lecture number 18. हम lecture number 18 chapter number 15 जिसका टॉपिक क्या था water image, उसका जो होमवर्क सॉल्यूशन है वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ बेटा लेट्स स्टार्ट होमवर्क सॉल्यूशन. अब हम क्या करेंगे? होमवर्क का सॉल्यूशन. होमवर्क सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1. Here alphabet U is given and here water is given. Okay बेटा, out of these 4 given options, नीचे मैं 4 options दे रही हूँ जिसमें से आपको बताना है कि जब आप U को पानी में देखोगे तो आपको उसकी इमेज कैसी दिखेगी. मीन्स आपको U किस पोजीशन में दिखेगा. क्लियर बेटा? सी हियर ऑप्शन ए इज गिवन and the position of U is given like this. आपको U ऐसे दिया हुआ है ऑप्शन ए में. Then you have to tell, आपको बताना है कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट है. ऑप्शन बी पोजीशन ऑफ U is given like this. आपका U इस पोजीशन में दिया हुआ है. Then you have to tell कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है. ऑप्शन सी पोजीशन ऑफ U is given like this. आपके U की पोजीशन ऐसे दी हुई है तो आपको बताना है इज दिस ऑप्शन इज करेक्ट. क्या आपका ऑप्शन सी करेक्ट है? ऑप्शन डी आपको आपका अल्फाबेट U ऐसे दिया हुआ है इस पोजीशन में. देन यू हैव टू टेल, आपको बताना है कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट है. यू नीड टू सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दीज 4 गिवन ऑप्शंस. क्लियर बेटा? Let's start solution. Here in solution, now we have to see that which option is correct. When we will see the given alphabet U in water, it will look like option number C. Understood? जब हम इस गिवन अल्फाबेट U को पानी में देखेंगे
तो वो कैसा दिखेगा, जैसा यू ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर बेटा? हेयर बेटा, द टॉप एंड बॉटम ऑफ द गिवन अल्फाबेट गेट्स इंटरचेंज। जो भी अल्फाबेट दिया होता है, जब हम उसको पानी में से देखते हैं तो उसके टॉप और बॉटम जो होते हैं, ओके, गिवन अल्फाबेट्स के, वो क्या हो जाते हैं, गेट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। ओके, टॉप बिकम्स बॉटम एंड बॉटम बिकम्स टॉप। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी। क्लियर बेटा? सो आंसर सी। अब यहां पे भी आप देखो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब आपने इस अल्फाबेट यू को वाटर में से देखा तो वो आपको ऑप्शन सी में जो बना हुआ है इस पोजीशन में आपको दिखाई देगा। क्लियर? सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी is correct. Clear? Have you cross-checked? Good. Discuss in homework solutions question number 2. In question number 2, given alphabet is R. और इसको भी हमने वाटर में से देखना है। ओके, जब हम इस R को पानी में से देखेंगे तो इसकी पोजीशन कैसी होगी, वो कैसा दिखेगा ये आर आपको? सी, इन ऑप्शन ए आर की ये पोजीशन दी हुई है, क्या आपको आर ऐसा दिखेगा जो ऑप्शन ए में है? इन ऑप्शन बी द पोजीशन ऑफ आर इज गिवन लाइक दिस। इन ऑप्शन सी आर इज गिवन लाइक दिस। एंड इन ऑप्शन डी, डी में आर ऐसा दिया हुआ है। अब आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से which option is correct. Let's start solution. Now we have to see that which option is correct. When we will see the given alphabet are in water, it will look like option number D. Understood? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जब आप इस आर को पानी में से देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा? जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है आर, ऐसा दिखेगा आपको। सी, it will look like this. So our answer is option D is correct. Clear? Now in homework solutions, we will discuss question number 3. In question number 3, given alphabet is W and here water is there. इस पानी में से आपने इस अल्फाबेट W को देखना है और इन चार नीचे दिए हुए चार ऑप्शन विच मैम इज गोइंग टू राइट, मैम यहाँ पर नीचे चार ऑप्शंस लिखेंगी। यू नीड टू सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शंस, कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कि जब आप पानी में से W अल्फाबेट को देखोगे तो वो कैसा दिखेगा। ओके, सी, ऑप्शन ए, पोजीशन ऑफ W इज गिवन लाइक दिस। ये W दिया हुआ है ऑप्शन ए में, इज इट करेक्ट? ये आपको देखना है क्या ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी, पोजीशन ऑफ W इज गिवन लाइक दिस। इन ऑप्शन सी W की पोजीशन ये दी हुई है ऑप्शन सी में। आपको यू नीड टू सेलेक्ट, आपको सेलेक्ट करना है क्या आपका ये ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी, पोजीशन ऑफ W इज गिवन लाइक दिस, है ना। तो आपको इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन
सेलेक्ट करना है कि जब आप अल्फाबेट W जो है इसको पानी में से देखोगे तो आपको इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना होगा कि कौन सा होगा, कि आपको ये W कैसा दिखेगा जब आप उसको वाटर में देखोगे। क्लियर? लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। Now we have to see that which option is correct. When we will see the given alphabet W in water, it will look like option number C. अंडरस्टूड? जब आप W को पानी में से देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा? जैसा कि ऑप्शन सी में W दिया हुआ है ऐसा दिखेगा आपको। क्लियर? सी, इट विल लुक लाइक दिस। अंडरस्टूड? सो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। आंसर ऑप्शन सी is correct. Clear? In homework solutions, we will discuss question number 4. Here in question number 4, alphabet P is given and this is water. इस पानी में से जब P को देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा? आपको 4 गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा है। ओके, C, option A, position of P is given like this. In option B, जब पानी में से आप अल्फाबेट P को देखोगे तो क्या आपको वो ऐसे दिखेगा विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी में P दिया हुआ है क्या आपको ऐसे दिखेगा? इन ऑप्शन सी, पोजीशन ऑफ P इज गिवन लाइक दिस। ओके, एंड इन ऑप्शन डी, P की पोजीशन आपको ऐसे दी हुई है ऑप्शन डी में। यू नीड टू सेलेक्ट आउट ऑफ दीज 4 गिवन ऑप्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट। कि जब आप पानी में से P अल्फाबेट को देखोगे तो वो आपको कैसा दिखेगा, वो आपको इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है जो कि करेक्ट है। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। नाउ we have to see that which option is correct. When we will see the given alphabet P in water, it will look like option number D. अंडरस्टूड? जब हम P अल्फाबेट को पानी में से देखेंगे तो ये हमें कैसा दिखेगा? जैसा कि ऑप्शन डी में P दिया हुआ है ऐसा दिखेगा आपको। क्लियर बेटा? सी, हियर आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? Understood? Now, homework solutions, we will discuss question number 5. In question number 5, given alphabet is T. Here water is given. जब आप T को पानी में से देखोगे तो इसकी पोजीशन कैसी होगी? Option A, position of T is given like this. In option B, T ऐसे दिया हुआ है, position of T is given like this. In option C, T की पोजीशन आपको ऐसे दी हुई है। ओके, position of T is given like this. In option D, this T is given. Means the position of T is given like this. You need to select
करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दीज 4 गिवन ऑप्शन। आपको इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है कि जब आप टी को पानी में से देखोगे तो वो कैसा दिखेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। Now we have to see that which option is correct. When we will see the given alphabet T in water, it will look like option number C. आपको ऐसा सी दिखाई देगा पानी में से। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, आपको ऐसा टी दिखेगा पानी में से। क्लियर? नाउ आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। अंडरस्टूड बेटा? हैव यू क्रॉस चेक्ड all answers? Very good. Thank you.